Bhavna Parashar. I'm going to teach you the topic work and energy. That is a topic from physics, and let's get started with it. So generally, whenever you are studying and you have studied a lot for hours, then you used to say that I have done a lot of work and I have got tired. So does it literally mean in terms of science, or you can say does it literally mean something in physics? So this is our topic work and energy, and as I have told you that generally what happens when you studied a lot, you used to say that I have got tired, I have done a lot of work, and it literally means nothing in terms of physics. If you have uh, if you have only studied for some hours, you can't say that you have done some work. So what does it mean? What does work mean in terms of physics? So let's take few examples. You can understand what work is. The first example is of bullock cart. In this you can easily see that these two bulls, ये क्या कर रहे हैं, ये दो बैल हैं, they are just um, uh, they are moving ahead, and along with these two bulls this cart is also moving. Okay, these bulls are applying force in the forward direction and the cart is also moving with it. Okay, so next is, you can take another example. In this, a man is trying to push the rock. Okay, but he is not able to displace it to even a few inch. Okay, then next is, you can take in another example. In both of these examples what we have seen is, जिसमें आपके जो बैल हैं वो गाड़ी को जब आगे की तरफ खींच रहे हैं, वो आगे की तरफ दे आर अप्लाइंग सम फोर्स, दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स, और वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ खिसक रही है. ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप किसी भी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, इफ यू आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेड टू सम डिस्टेंस, ओके, अगर वो थोड़ा सा खिसक के आगे चली जाती है, देन ओनली वर्क इज considered to be done. Okay, so what is work? If a body gets displayed when some amount of force is applied on it, then we can say some amount of work is done. And you can denote work with the letter W, which will be equal to the multiplication of the magnitude of the force and the displacement. So we have denoted force with capital F and displacement with S. Now, what are the conditions on the behalf of which you will say that some work has been done? So there are two conditions. You can say when a net force is applied on any object, plus the object must be displaced. तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी कि एक तो आप फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, देन ओनली वर्क इज considered to be done by someone. Okay, next is, you can see the image book is lying on the table. So इसमें कोई मतलब वर्क डन की सिचुएशन है नहीं है, इसमें कोई भी जो हमारे पास हम कहेंगे हमने कोई काम नहीं किया, बिकॉज द बॉडी इज इन रेस्ट, द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन रेस्ट. ओके, unit of work. Since we know that work done is equal to force into displacement, so unit of work will be the multiplication of both of the units, the unit of force and the unit of displacement. So in SI units, we know that the unit of force is Newton, SI unit of force is Newton. Similarly, the SI unit of displacement is meter, and the unit of work will become Newton meter, and you can say Newton meter is equal to joule. Okay, so basically the SI unit of work is joule. So 1 joule will be equals to what? 1 Newton into 1 meter. So how will you define 1 joule? 1 joule is the work done
when you will apply the force of 1 Newton on a body and it gets displaced through the distance 1 meter. Similarly, we are having the CGS units also. Force is having, in CGS, the force is having dyne as a unit, and for the displacement it is centimeter. So for the work it will become dyne centimeter, and you know that dyne centimeter is, you can say dyne centimeter, it will become erg. Okay, same is the case with the CGS unit also. 1 erg will be equal to 1 dyne multiplied by 1 centimeter. So how will you define 1 erg? 1 erg of the work done may be defined as when you will apply a force of 1 dyne on some body and it gets displaced through a distance of 1 centimeter. Then you will say that 1 erg work is done. Okay. So next is, before this I want to tell you that uh, work is a scalar quantity. So the reason we will discuss in the next slide. Before that we have to see the relationship between the joule and erg. So as we know that 1 Newton of the force, it is equal to 10 raised to the power 5 dyne, and the displacement 1 meter is equal to 100 centimeter. So our work of 1 joule, because Newton meter is what? 1 joule. So our work of 1 joule will be equal to 1 Newton into 1 meter, and we will put the relation between the Newton and dyne and meter and centimeter, and we will get that 1 joule will equals to 10 raised to the power 7 dyne centimeter. And you know that dyne centimeter is what? Erg. So 1 dyne centimeter will be equal to 1 erg. So 1 joule will become 10 raised to the power 7 erg. Next is, work is independent of the path followed. Work does not depend on the path followed. Let us suppose if you have to, displace a body, you are applying force F on that, and this body is at point A. When you will apply force F on it and it get displaced through a distance, a displacement S, okay, and it reaches to the point B. तो आप उस बॉडी को वहां तक ले जाने के लिए कोई भी पाथ, कोई भी मतलब किसी भी तरह से आप ले जाएं, यू कैन फॉलो, either you can follow the path P1, or you can follow the path P2, or you can follow the path P3 or any other path. Okay, लेकिन इन सब में क्या होगा, you are taking displacement. Okay, you are not calculating the distance, you are taking the displacement. और आपको पता है displacement is what? The shortest distance is your displacement. तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे, किसी भी पाथ में आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज ए, फाइनल इज बी, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, पाथ कोई भी हो, इधर यू, जैसे आपकी बॉडी ये है, आप चाहे इसे ऐसे ले जाएं, कैसे ले जाएं, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या रहेगा हर केस में, P1 P2 P3 हर केस में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा. तो क्या आपने क्या देखा कि जो वर्क डन है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ना कि किस रास्ते से उसको ले जाया गया है. ठीक है. एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ओनली, यू हैव टू सी ऑन द ओनली द डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो बेसिकली क्या है, फोर्स यू आर अप्लाइंग इज कांस्टेंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. तो क्या है जो आपका वर्क डन है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी ऑफ द डायरेक्शन. सो योर वर्क डन विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज, अब वर्क डन जो है वो स्केलर भी हो गया. हमने ये भी देख लिया कि वो मतलब जो भी हमने पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करता. अब जो है हमारा वर्क डन, इट कैन बी पॉजिटिव इन नेचर, नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो. ओके. तो हमारे पास क्या कंडीशन होंगी कि हमारा जो वर्क डन है इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, और इट विल बी जीरो. ओके. तो पहली कंडीशन क्या है, जब आप फोर्स किसी डायरेक्शन में, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो in the same direction, the body is getting displaced in the same direction, then you will say your work done is positive, your work done is positive. सेकेंड क्या है आपका वर्क डन, देखो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
जिसमें आपका फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। ऐसा कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसा हमने पहले देखा था वो जो बैलगाड़ी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें क्या है, वो उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जो बैल है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। तो बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेस हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वहां पे आपका जो वर्क डन है दैट विल बी पॉजिटिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट इज योर वर्क डन, व्हेन विल योर वर्क डन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, किस कंडीशन में आपका वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, जब आपका फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन योर वर्क डन विल बी नेगेटिव, योर वर्क डन विल बी नेगेटिव। ऐसा केस कहाँ होता है, यू कैन से जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 180, बिकॉज दोनों क्या होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट इन ऑपोजिट। तो आपका जो है ऐसा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप। अब देखिए, लेट अस सपोज दो लोगों के बीच में है कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होते होते क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई है, जो एक बंदा है वो ज्यादा ताकतवर है, बीच में कोई आया उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो उसे रोक रहा है पर वो फिर से उसको मतलब दबा के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो बंदा जो बीच में आया वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर वो उसे दबा के आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो वो बंदा लगा रहा है पर वो जो दूसरा बंदा है उस बंदे के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इन अनदर डायरेक्शन। ओके, एंड इट इज टोटली अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसे में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जो उस बंदे ने जो वर्क डन किया है दैट विल बी इन नेगेटिव इन नेचर। ओके, दैट विल बी नेगेटिव इन नेचर। थर्ड, you can see the case when will be the work done be zero। वर्क डन कब जीरो हो जाएगा आपका, जैसे कि केस ले लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो जो अर्थ आपकी क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ इज बाइंडिंग द मून अराउंड इट थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो मून का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डायरेक्शन अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मतलब एग्जर्ट कर रही है वो किस डायरेक्शन में है, उन दोनों की क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगी, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अर्थ इज अ सेंटर, वी कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक इन अ वे। देखिए, जैसे हमारी ये जो अर्थ है, ठीक है, यू कैन से दिस इज अर्थ, और इसके चारों तरफ जो मून है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, दिस इज आवर मून। तो जो अर्थ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट विल बी लाइक दिस, और जो मून है वो इस तरफ मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और जो फोर्स है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली दीज आर at 90 डिग्री। ओके, these are at 90 डिग्री। तो जब हमारे पास ये बिल्कुल ही राइट एंगल पे दोनों के दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा देन यू कैन से योर वर्क डन विल बी जीरो। वैसे तो इसका मतलब मेन रीजन कैसे कह सकते हैं आप कि भाई ये वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा वर्क डन होता है वर्क डन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा हम लेते हैं, और कॉस थीटा मतलब जब थीटा हमारा 90 हो गया, कोस 90 यू नो, कोस 90 इज जीरो, तो हमारा वर्क डन विल बिकम्स जीरो। तो दिस इज द मेन रीजन कि हमारा वर्क डन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क डन कैन ईदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नाउ comes the concept of energy. There is a famous advertisement by Mahendra Singh Dhoni, and the advertisement is of Boost, and he used to use a tagline, "Boost is the secret of our energy." Okay, so basically what does that depicts? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि more energetic person will do more work, ठीक है, जितना ज्यादा आप में एनर्जी होगा देन यू विल बी एबल टू डू
more work. Okay, जितना ज़्यादा energy उतना ज़्यादा काम करने में आप सक्षम होंगे. So what does energy means? Before that, what is the origin of this word? This word energy, it is taken from a Greek word energia, जिसका मतलब क्या है? At work और in work. So basically energy is what? Energy is the capacity of doing work. कि आप एक काम आपको दिया गया है उसे आप मतलब किस क्षमता के साथ कर पाते हैं. That capacity is your energy. Okay? तो दूसरा है कि अब ये एनर्जी जो है वो कैसे ऑब्जेक्ट्स उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं काम करने के लिए. सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है जो काम करता है वो क्या करता है? एनर्जी जो है वो लूज करता है. आपने देखा होगा ना कि आपने अगर मानो आपने कोई गेम खेला है, ठीक है, जस्ट लाइक यू हैव प्लेड फुटबॉल. तो आपने अगर फुटबॉल खेला है देन यू विल लूज एनर्जी. आपको थकावट महसूस होगी, आपने एनर्जी लूज कर दी है, ठीक है. और जो आपने जैसे फुटबॉल को किक किया, तो किक किया तो आपने क्या किया? वो एनर्जी जो है वो फुटबॉल को आपने ट्रांसफर कर दी. तो आपने एनर्जी, आप काम कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो आपने एनर्जी क्या की? लूज की. फुटबॉल जो है उस पर आप काम कर रहे हैं तो फुटबॉल ने एनर्जी गेन की. सो बेसिकली द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क वो एनर्जी लूज करता है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन दैट गेन्स एनर्जी. Next is there is a picture in which you can see there is a spring and we are pressing a ball along the spring. अगर हम उस बॉल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग जो होगा दैट विल कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद जैसे ही हमने अपना हाथ हटाया द स्प्रिंग विल गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट बॉल. तो बेसिकली जब हमने इसे मतलब स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हमने इस पर फोर्स लगा के इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें क्या होगा? इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है. हमने जो फोर्स लगाया उससे उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, और वो एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी बॉल को. जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेगा दैट विल ट्रांसफर द एनर्जी टू द बॉल एंड बॉल विल get displaced. Okay, basically work is what? Work is a transfer of energy. So now what are the units of energy? Unit of energy is ditto to the unit of work. So in SI system unit of work is joule. So the unit of energy will be the same. Unit of energy will also be joule, and in CGS system unit of energy will be erg. Like work, it is also scalar quantity. So now we can see that there are a lot of types of energy we can see in our daily lives. Like we used to take light energy from sun, heat energy from sun, or you can say solar energy. We are getting solar energy from sun, right? And electric appliances, our electric appliances, they use electricity, which is what? Electrical energy. So we are going to discuss few kinds of energy here. First is light energy. Light energy क्या होती है? Light energy is a kind of energy that gives us a sensation of vision, जिससे हम सब चीजें देख पाते हैं, ठीक है. तो ये क्या है हमारा? जैसे हम रोशनी की वजह से ही देख पाते हैं, तो जितनी भी चीजें, जैसे हम सन से जो हमें दिन निकलता है, दिन में आप सब चीजें क्लियरली देख पाते हैं, रात को उतना क्लियरली नहीं देख पाते. तो सूरज जो है इट इज प्रोवाइडिंग अस द लाइट एनर्जी. Next is thermal energy. Sun is also providing us the thermal energy, or you can say heat energy, जो हमें sensation दे heat का, जिससे हमें गर्मी महसूस हो, ठीक है. So thermal energy is what? It is a kind of energy that gives us a sensation of heat. Next is chemical energy. Chemical energy is what? जब आप जो हमारे बैटरीज हैं, सेल्स हैं, उनमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन जो होता है उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी केमिकल एनर्जी, ठीक है. जो भी उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या वो क्या होगी हमारे पास? केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज but in this chapter we are going to focus on only these last
two energies. The one is potential energy and the next is kinetic energy. So we are going to focus on these energies. Okay. First we are going to discuss the potential energy. Potential energy. What is potential energy? Potential energy is the energy possessed by any of the body due to its position. ठीक है, जो भी बॉडी की पोजीशन है उसकी वजह से उसके जो एनर्जी उसके अंदर है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. लाइक हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो क्या उसमें कोई एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. मान लीजिए जैसे हमने ये पीछे देखा था कि ये बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक के अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम कर रही है और हाउ द एनर्जी विल get converted into some other form. Okay, so this is a toy car. When you will wind the spring, this is a toy car. बचपन में सबने इस कार से खेला होगा. इसमें आप क्या करेंगे? When you will wind the spring, then the potential energy will get stored in this. Potential energy will get stored in this. Okay, और जब जैसे you will release the card, जब आपको उसको फ्लोर पे रख के you will release the card, then the potential energy, the car will use the potential energy, and it will, the unwinding of the spring will do what? It will start losing the potential energy, and potential energy will get converted into kinetic energy, जिसकी वजह से वो जो गाड़ी है that will go ahead, that car will cover some distance. Next is another example. इसमें क्या होता है? जब भी आप देखते हैं कोई भी आर्कर होता है, वो जब भी कोई भी आर्कर जो है वो जब भी मतलब अपने बो की स्ट्रिंग को पीछे पुल करता है, एरो को बो की स्ट्रिंग पे रख के, देन इफ ही और शी यूज टू पुल द स्ट्रिंग, तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल गेट स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन ही और शी विल रिलीज द स्ट्रिंग, तो बो जो है दैट विल टेक ऑल द एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी बो में, एंड इट विल गो अहेड. ओके, and one more example is there. इसमें क्या है? डैम है. आपका जो डैम वाटर रिजर्वर होता है, इसमें जो भी आपका पानी जैसे इसमें है, और that will be having potential energy. Okay, this water is having potential energy, and when the water is released, तो जब वाटर को हम रिलीज करेंगे, then this potential energy will get converted into kinetic energy. Okay. And then this kinetic energy, flow of water will start, and this kinetic energy, what will it do? It will help the turbine to rotate. Okay, ये टर्बाइन को आगे जाके रोटेट करने में मदद करेगी, and this will get converted into mechanical energy. जैसे वो टर्बाइन रोटेट करेगा तो it will become mechanical energy, और टर्बाइन रोटेट करेगा, this mechanical energy जो है this will get converted into electrical energy, because this turbine is connected with, this is a turbine of what? Generator, और इससे क्या होगा? आपकी electrical energy will get produced. Okay, next is potential energy at a certain height. जब भी कोई चीज है आप उसे जमीन से ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो क्या होगा? The work is done against the gravity, and this will get stored in as a potential energy in that particular body. जब भी आप किसी भी चीज को जमीन की सतह से ऊपर ले जाते हैं, तो उस बॉडी के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, बिकॉज यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. ओके, so basically this potential energy at a certain height, we used to say it gravitational potential energy, because gravitational force is acting on the body, so you will say it gravitational potential energy, and it is defined as the work done in raising an object from the ground to a certain point against the gravity. So
how much gravitational potential energy does an object have? So basically we need to find the expression for the gravitational potential energy, कि कितनी gravitational potential energy किसी object में होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए we need to find an expression. ठीक है. So let us suppose an object of mass m, it is lifted up to some height and we used to say this height as h. जो h है उस particular height तक we have lifted it up and we have applied a force F on it, okay, and acceleration due to gravity, because जो इस पे क्या है, gravitational force भी लग रहा है बॉडी को, जब आप नीचे से ऊपर उठाएंगे तो gravity is acting on the body, so gravitational force will come into the scenario and you can see the force applied on the object, we have denoted it with capital F. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो acceleration होगा that will be because of the gravity, so we will denote it using G. okay, जो हमने इसको उठाने के लिए जितना भी हमने काम किया है that will be equal to the potential energy, or you can say that will be stored as potential energy in this object. okay, तो हमें पता है जो वर्क डन है दैट विल बिकम द पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारा वर्क डन है, वी यूज्ड टू से वर्क डन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज वर्टिकल इन डायरेक्शन, और उस डिस्प्लेसमेंट को जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई तक हम लेके गए हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा है, h, अ पर्टिकुलर हाइट विच वी हैव डिनोटेड बाय यूजिंग स्मॉल h. Therefore, our potential energy will become F cross H, and we have named this equation potential energy equals to force into height. We have named it as equation 1. Then अब हमें पता है जो force हमने apply किया है that will be equal to the what, weight of the object. तो हमारा force क्या हो जाएगा, वैसे तो force क्या होता है, mass into acceleration, but यहाँ पे acceleration is all due to gravity. So force will become m into g. You now you can put this force in the above equation, and our equation, or you can say our expression for potential energy will comes out to be mgh. और जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना है वी नीड सम रेफरेंस. जनरली हम क्या ज़मीन को एज अ रेफरेंस लेते हैं. रेफरेंस मतलब कि हमने यहाँ से किसी बॉडी की हाइट को कैलकुलेट करना है, कि हम ज़मीन से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो उस हाइट को लेना है, ठीक है, ज़मीन से नीचे ले जा रहे हैं तो उस हाइट को. तो बेसिकली हम जो ग्राउंड लेवल है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेवल. लेकिन आप रेफरेंस लेवल कोई भी ले सकते हैं. जनरल केस में हम लोग ग्राउंड को लेते हैं, लेकिन कोई भी ले सकते हैं. और उस जो हमारा रेफरेंस लेवल होगा that will make our gravitational potential energy positive, negative or zero. okay, so let us take a case कि आपकी जो कोई भी you can say book is lying on the table. okay, कोई भी बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और आपने रेफरेंस लेवल ले लिया है जमीन को, ग्राउंड को. यू हैव टेकन द रेफरेंस, यू हैव टेकन इट एज अ रेफरेंस लेवल. तो यहाँ से जो हाइट होगी आपके टेबल के टॉप की दैट इज योर एच. तो आपका जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है यू विल टेक इट एज पॉजिटिव. तो एच विल बी आर पॉजिटिव. तो एच पॉजिटिव होगा तो देन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव बिकॉज मास जो है वो पॉजिटिव है, जी इज कांस्टेंट, योर मास इज कांस्टेंट. तो जो एच होगा उसको आप जैसे मेजर करेंगे इट डिपेंड्स ऑन दैट ओनली. तो एच को आपने क्या है ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर आप मेजर कर रहे हैं तो इट विल बी पॉजिटिव. तो आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट है कि अगर आप मान लीजिए आपने बुक जो है आप ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने टेबल से जो है वो बुक हटा के और ज़मीन पे रख ली और टेबल को जो है आपने रेफरेंस लेवल, टेबल का जो टॉप है यू हैव टेकन इट एज अ रेफरेंस लेवल. ओके, यू हैव टेकन इट एज अ रेफरेंस लेवल. तो उससे आपने बुक उठा के ज़मीन पे रखी है तो उस क्या होगा, आप ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने बुक टेबल से उठा के नीचे ले आए तो वो आपकी हाइट जो है दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो आपकी हाइट यू विल टेक हाइट as negative. So your potential gravitational potential energy will become negative.
और जीरो कब होगा, किस केस में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, किस केस में जीरो होगा? अगर आपने मान लिया आपकी जो बुक है दैट इज लाइंग ऑन द टेबल एंड यू हैव टेकन द टॉप ऑफ द टेबल एज अ रेफरेंस लेवल, तो आपके रेफरेंस लेवल के ऊपर ही जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है देन योर हाइट इज व्हाट, जीरो, so your gravitational potential energy will become zero. Next is kinetic energy. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो भी उसका मोशन होगा उसकी वजह से अगर बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है, दिस इज व्हाट इट्स काइनेटिक एनर्जी. लाइक इन अ केस ऑफ फ्रूट फॉलिंग ऑफ अ ट्री, जब आपके फल जो है पकने के बाद जब पेड़ से नीचे गिर रहा है वो, तो क्या है, अब वो उसके ऊपर जब लगा हुआ है तो इट इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो टूट के नीचे आना शुरू हो जाता है तो द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो जो हमने डैम का केस है उसमें भी पढ़ा है, जब पानी ऊपर से नीचे हम फ्लो करना शुरू कर जाता है जब पानी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. Next is what will be the expression for kinetic energy. Let us suppose a body of mass m, we have it is in rest, okay, so initial velocity will be 0 and we have applied some force, और उसको हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से it gained a velocity v and it get displaced through a distance s. So here we have taken m is the mass of the body and as it was at rest, so initial velocity will be 0 and we have applied a force f on it. After some time, you can say after t seconds, okay, कुछ समय के बाद आप कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद क्या होगा, बॉडी विल गेन अ फाइनल वेलोसिटी बिकॉज पहले इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, हमने फोर्स लगाया उसे धक्का दिया, इट विल gain some velocity and the final velocity is v and it get displaced through a distance s. तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा that will be denoted by a. So we know that work done is equals to what, force into displacement. Now from the Newton's second law we will put the formula for force in this equation. We know that force is what, mass into acceleration. We will put this in the work done. So our work done will become MAS, mass into acceleration into displacement. Now we have to take equation of motion in terms of displacement. जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड किया है दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. फ्रॉम हेयर यू विल टेक आउट द formula for acceleration which is v square minus, that is final velocity, square of the final velocity minus square of the initial velocity divided by 2 times of the displacement. We will take this expression and will put this in the formula for work done. Okay, तो हम जब equation 2 that is the expression for acceleration, when we will put this in equation 1, then our equation 1 will become m into s into v square minus u square by 2s. From here displacement will get cancelled and we will get an expression m into v square minus u square by 2. अब हमें पता था initial velocity is 0, therefore our work done will becomes 1 by 2 mv square and our work done is our kinetic energy. क्योंकि क्या होता है जब जो हमारा work done हमने किया that will get converted into energy. जो भी हम काम करते हैं पहले क्या, जो body है that is at rest and we have applied the force, we have done some work and that work will get transformed into kinetic energy. Okay, so next is conversion of energy from one form to another. जो हमारी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ना कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यू कैन से, ना कि ऐसा होता कि वो मतलब एनर्जी कहीं खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता. इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लाइक इन केस ऑफ
Like in case of microwave, our electrical energy, we use electricity, it gets converted into heat energy. Okay. In case of bulb, electrical energy gets converted into light and heat energy. The next is in case of fan, you can say electrical energy जो है वो mechanical energy में convert हो जाती है. Fireworks, fireworks में क्या होता है, basically some chemical reaction takes place and that chemical energy gets converted into sound, light and heat energy. And we have already done the case of dam, in which potential energy gets converted into kinetic energy when the water flows down, and then this kinetic energy gets converted into mechanical energy जब वो turbine starts moving. When the turbine starts moving, it gets converted into mechanical energy, and from that turbine, this mechanical energy gets converted into electrical energy. So next, as we have seen that the energy is getting converted in some other form. Okay, so it means energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred, it can be converted into from one form to another. So this is what our law of conservation of energy, and we're gonna prove this. We're gonna prove the law of conservation of energy, and we are taking a freely falling body. Okay, in this case we are taking a freely falling body, and we are going to show that energy is getting converted into some other form, but the total energy throughout the process of falling of the body, our energy will remain constant. मान लीजिए there is a body of mass m and it is freely falling. पहला उसका initial position we have taken as a. At that point जो body है उसके अंदर जो हमारा क्या होगा, potential energy होगी, because it is at some height from the ground, तो उसमें potential energy क्या हो जाएगी हमारे पास, mgh, that is its potential energy. Okay, अब body जो है वो उस पर्टिकुलर हाइट पे है और अभी उसने गिरना स्टार्ट नहीं किया है. ठीक है, मान लो वो पोजीशन ए पे ऐसे है कि अभी उसने नीचे आना शुरू नहीं किया है, तो हाइट इज h, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके अंदर होगी नहीं, बिकॉज उसने अभी मोशन में आना शुरू ही नहीं किया है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. देयरफॉर द टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. So potential energy, because it is having only the potential energy, so total energy will be mgh, and we have denoted it as equation A. Next, let us suppose ये जो हमारी body है, it falls off and comes to a point P, comes to a position B. Okay, ये A से B position में आती है and it covers a distance x. तो हमारी जो बॉडी है वो ऊपर से मतलब थोड़ा सा नीचे आई, तो उसने x डिस्टेंस कवर किया. पहले वो h पे थी, h हाइट पे थी, उसने x जो हाइट है वो कवर कर ली है, तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी रह जाती है, उसकी हाइट रह जाती है h माइनस एक्स. यहाँ पे जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या होगा, इट विल बी हैविंग बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल get decreased or and it gets converted into kinetic energy. ठीक है, potential energy क्या होगी हमारी, decrease होती होती और वो kinetic energy में change होती चली जाएगी. ठीक है, it will get changed into kinetic energy. तो potential energy क्या होगी इस position पे, our kinetic energy will potential energy will be mgh minus x, and kinetic energy will become what, half mv square, and our total energy will become the sum of both potential and kinetic energy. This will become mgh minus x plus half mv square. Now we will take the equation of motion v square equals to u square plus 2as. अब हमें पता है जो हमारी initial velocity थी, body was at rest, तो हमारी initial velocity was 0. जब बिल्कुल a position पे थी, body was at rest, it was having only potential energy, so our initial velocity becomes 0, and from here we get the expression for v square. This comes out to be 2gh.
h is the height and g is, because it is freely falling, so g will be the acceleration due to gravity. Acceleration जो भी होगा that will be due to the gravity. We have to substitute this expression of v square in our equation of the total energy, and from here you will get the total energy. It will comes out to be mg h minus x plus half m into 2gh, and when you will open the brackets you will get mgh minus mgx plus mgx, and this mgx will cancel out with another mgx, and our total energy will comes out to be mgh, and we have named this equation as B. Now the body has reached to the ground level. बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे गिरी, जो हमने पहले देखा था, बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे गिरी and it reaches to the ground level, and its position we have used C. This point is C. वो C पे पहुंच गई है, and C is the point that is on the ground surface of the ground. Okay, तो जो है बॉडी है उसने पूरी की पूरी जो जिस हाइट पे वो थी वो सारी हाइट कवर करके वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई है हमारे पास. तो पोजीशन सी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम्स जीरो. वाई? बिकॉज हाइट बिकम्स जीरो. जो हमारी हाइट है दैट विल बिकम्स जीरो. नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस जो है वो पूरी बॉडी ने कितना कवर कर लिया है, पूरा h डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, एंड it is having the velocity v, so kinetic energy will becomes half mv square. So our total energy will becomes the kinetic energy, because potential energy eventually becomes zero, so total energy will be having the contribution of only the kinetic energy, and that will be equals to half mv square. Now we have to use the same equation of motion. From there you will get the expression for v square, which comes out to be 2gh. We have to put this v square in the expression of total energy. From here you will get that our total energy comes out to be mgh. So you can compare and see that in each case at the point A, B and C, the total energy comes out to be same, which means total energy is constant throughout the free fall. Now here comes the concept of power. Basically power होती क्या है, जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली वो उतना ज़्यादा काम कर रहा है. ठीक है, जितनी ज़्यादा जिसके पास पावर है वो उतना ज़्यादा काम करेगा. आपने देखा है जो वेट लिफ्टर्स हैं, जो जब वो वेट को उठाते हैं तो क्या जिसमें जितनी पावर होगी वो उतना ही ज़्यादा वेट उठा पाएगा. ठीक है, सो हाउ विल यू डिफाइन पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किस काम को कितने जल्दी कर पाते हैं. ठीक है, तो ग्रेटर द पावर ऑफ द बॉडी more will be the work done, and the SI unit of power is watt. Now the question arises that how fast a given work is done. Basically we have to derive the mathematical expression for power. So power is what? Rate of doing work. So you can say power will, if we denote power with P, then it will becomes work done by time taken to do the work. As we know that work done is what? Force into displacement. So our power will become force into displacement by time. So now what are the units of power? Units of power will be unit of work done by unit of time. So in SI units our power will becomes Newton meter per second, and we know that 1 Newton meter is equal to 1 joule. ये हमने एनर्जी और वर्क के कंसेप्ट में वी हैव ऑलरेडी डन दैट 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल. तो हमारी पावर जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट, और सीजीएस यूनिट में इट विल बी अर्थ पर सेकेंड. अब जो पावर की यूनिट है वाट,
जब हम बड़ी अमाउंट में कोई भी एनर्जी या पावर यूज करते हैं तो उसको वी कांट शो इट इन टर्म्स ऑफ वाट. फॉर दैट वी यूज a bigger unit. This is called kilowatt. Okay. तो जब हम ऐसे बड़े बड़े मतलब बड़ी चीज को डिनोट करेंगे तो वी विल यूज इट एज किलोवाट. बड़ी एनर्जी जो होगी उसको यू विल शो थ्रू किलोवाट. ओके. सो हमें पता है पावर इज व्हाट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. जितना आप काम करेंगे आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने काम किया है तो एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड विल बी योर, you can say that power will be energy per unit time. And electrical energy, we are using a lot of electrical energy in our day to day life. So our electrical energy is expressed in terms of kilowatt hour. कैसे आएगा? Our energy will become power into time period. Our energy will become power into time. So it will become kilowatt hour. Since 1000 joule per second is what? 1 kilowatt. Because 1 watt was equal to 1 joule per second, and for kilo you have to multiply it by 1000. It will become 1 kilowatt will become 1000 joule per second. Now 1 kilowatt into 1 hour, this will be 1 kilowatt hour. और अब आप इसको जूल में कैसे अब आपको रिलेशनशिप जो है, वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल. सो 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at the rate of 1000 joule per second. So 1 kilowatt hour will be 1000 watt multiplied by 1 hour, and 1 hour is having 3600 seconds. So it will become 1 kilowatt hour will become 3.6 into 10 raised to the power 6. It will be 10 raised to the power 6 joule. So our 1 kilowatt will be equal to 10 raised to the power 6. So this was all about the work and energy. We have done this, and now we are going to take a break. After that we will take some questions from you people, and we'll be going to discuss those questions. प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा So we have got some questions from you viewers. The first question is, what is the work done against the gravity when a body is moved horizontally along a frictionless surface? तो जब भी हमारी frictionless surface पे हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो ग्रेविटी उस मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए जब भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो मोशन है बॉडी इज कवरिंग सम डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। सो वर्क डन इज ड्यू टू द फोर्स विच वी हैव अप्लाइड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। सो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट विल बी 0. नेक्स्ट इज a 40 kg girl is running along a circular path of radius 1 meter with a uniform speed. How much work is done by the girl in completing one circle? एक सर्कल को कंप्लीट करने में उस लड़की ने कितना मतलब काम किया है? What is the work done? So basically work done is what? Your work done is work done will becomes 0. Your work done will becomes 0. Why? Because work done is your force applied into your displacement. और जो हमारा इसमें फोर्स जो है, फोर्स इज व्हाट? वर्क डन। जो गर्ल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रही है, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो, उसका वेट कुछ भी हो, वो एक सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट ऑन दैट बॉडी, दैट गर्ल, द बॉडी ऑफ दैट गर्ल, एंड द डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन दैट centripetal force and the displacement will becomes 90 degree. And second thing is वो वापस घूम के इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही रीजंस हैं कि योर वर्क डन विल बिकम्स 0. नेक्स्ट इज when force retards the motion of the body, what is the nature of work done by the force? जब भी जो हमने केस लिया था, मैंने केस लिया था लेक्चर के दौरान, कि उसमें क्या है, if 2 person are quarreling, ओके, दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक जो है वो उस बंदे को हटाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, और वो जो दूसरा जिस बंदे को वो पुश कर रहा है वो उससे काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी मतलब एनर्जेटिक है, तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो फोर्स ऐसे करके लगा रहा है, पर वो फिर भी आगे की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है इस केस में? यही वो केस है जिसमें जो फोर्स है दैट रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा, जो इसका फोर्स है वो क्या कर रहा है, ये सिमिलर केस है, इसमें क्या होगा, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मोशन ऑफ द बॉडी को, जो डिस्प्लेसमेंट है उसे रोक रहा है, उसे डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, योर वर्क डन विल बी negative in this case. Next is electrical heater is rated 1200 watt. How much energy does it use in 10 hours? Okay, so I'm gonna share the screen and we'll solve this numerical for you. Electrical heater की, that is 1200 watt.
इट मीन्स जो आपको पावर दे रखी है इलेक्ट्रिकल हीटर की, दैट इज योर P is 1200. I hope you will understand this. 1200 watt. And so in terms of किलोवाट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज जो आप एनर्जी निकाल रहे हैं दैट विल बी किलोवाट आवर. तो पहले हम क्या करेंगे, इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे. इट विल बिकम 1.2 किलोवाट. ठीक है, यू विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड इट विल बिकम 1.2 किलोवाट. नेक्स्ट जो है इसको ऑपरेट किया गया है 10 आवर्स के लिए. तो जो हमारा टाइम है इट इज 10 आवर्स. तो आप क्या करेंगे, जो आपका टाइम जो है उसे आप सेकेंड्स में चेंज कर, ओके वो तो आवर्स में है ही, तो यू कैन कीप इट इन आवर ओनली. ठीक है, 10 आवर, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर. तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, योर एनर्जी विल, देखो हमने क्या किया था, ये जो पावर है, पावर क्या होता है, एनर्जी यूज टू डू अ वर्क इन गिवन टाइम. ठीक है, तो E बाई टी और एनर्जी बाई टी ये हमें पता है. ठीक है, तो जो हमारा जो T है वो हमें पता है, पावर हमें पता है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द एनर्जी. तो एनर्जी विल बिकम्स व्हाट, पावर इनटू टाइम. इट विल बिकम पावर इनटू टाइम एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 12 kilowatt hour. Okay, this will comes out to be 12 kilowatt hour. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the answer this. Okay, then next is a man of mass 60 kg sums up a staircase of 70 steps in 10 seconds, and you have to calculate the part if the height of each step is 20 centimeter. Then you have to calculate the height. तो देखिए इसमें क्या है, first I'll erase this. I hope you have understood the previous numerical. I have tried my best. And next numerical is, you are told that a man of 60 kg, you are given the mass of you have given the mass of that person, and that is 60 kg. Okay, तो उसने जो है ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, पहले हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे. यू विल कैलकुलेट द फोर्स. फोर्स विल बी, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, जो हमारा ग्रेविटी है दैट विल कम्स इनटू प्ले. तो जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पर्सन, एंड दैट विल बी mg. एंड दिस विल बिकम, अगर हमने मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या, ये क्या हो जाएगा, फोर्स विल बिकम्स 600. ओके, इट विल बिकम 600 न्यूटन्स. नेक्स्ट जो हमें बता रखा है, जो स्टेयर है हमारी, एक स्टेयर जो है दैट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर. सो टोटल उसने 70 स्टेप्स लिए. तो जो हमारा डिस्टेंस है, यू कैन से डिस्टेंस और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से द your displacement, or you can say the distance covered on the staircase, that will be you will multiply the number of stairs 70 into 20. It's 20 centimeter. एक जो stair है it is of 20 centimeter. So ये जो हमारा है कितने सेंटीमीटर आ गया, 1400 सेंटीमीटर. 1400 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द पावर. तो जो हमारा पावर हो जाएगा दैट विल बी योर
work done, that is F into S, and then your time multiply by your time, you can see ये हो जाता है। लेकिन अब हम इसको जब when you will solve, you will get that this will becomes, your power will become equals to the force into velocity, कि किस velocity के साथ वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, that will also matter. So you can easily say that that this will becomes, this is Fs by t, and your St will be your velocity. Either you can put everything like this, या तो आप एज इट इज रख दीजिए सारी चीज़ों को। अगर, और ये क्या हो जाएगा, अगर आप वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करके रखना चाहिए तो इट्स योर चॉइस, ओके। तो हम इसको एज इट इज रख देते हैं। तो दिस विल बिकम 600 and your distance is 1400 and the time taken is 10 seconds, okay, the time taken is 10 seconds. तो पहले क्या है, ये 1400 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज मीटर पर सेकेंड, इट शुड बी मीटर पर सेकेंड, सारी एसआई यूनिट्स में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 14 मीटर, तो हम इसे भी मीटर में कर लेते हैं, ये भी मीटर हो गया हमारा। एंड देन व्हेन यू विल डिवाइड द टाइम, योर टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो आपको जो हमारा आंसर जो है दैट विल कम्स आउट टू बी 840, it will comes out to be 840 watt, okay, this will be your, I hope yeah, it will comes out to be 840 watt. I hope I am clear and I hope your doubt is clear now. Next is can any object have mechanical energy even if its momentum is zero? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या उसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी रहेगी? देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज आर पोटेंशियल, यू नो, एडिशन ऑफ सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों मतलब इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारा मोमेंटम जीरो हो गया, इट मींस योर वेलोसिटी विल कम्स टू बी जीरो, ठीक है। मोमेंट, क्योंकि देखो मास तो कभी किसी बॉडी का जीरो हो नहीं सकता, तो क्या वेलोसिटी, इट मींस उसकी वेलोसिटी ही क्या है, वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, जो सारा का सारा जो रोल होगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही होगा। उसमें जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी that will be due to the potential energy, or you can say the body will be having some potential energy, okay. I hope Nivedita your doubt is clear now. Next is a light and a heavy object have same momentum, what is the ratio of the kinetic energy? देखो जो लाइट और हैवी दो ऑब्जेक्ट हैं, इट मीन्स उनके मास में फर्क है। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ठीक है। तो जो मोमेंटम है वो बॉडी का सेम है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? तो जो हमारा मोमेंटम है, इफ वी यूज टू डिनोट इट बाय पी, तो जो हमारा मोमेंटम है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा अगर उन दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी द, दिट इज फाइंड आउट, पहले देख लेते हैं। मोमेंटम सेम है दोनों का, इट मीन्स एक जो बॉडी है, जो हल्की बॉडी है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी जाके हमारा, और जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम होगी तभी जाके हमारा जो मोमेंटम है दैट विल बी द सेम। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी, that will depend on the mass and velocity, okay। तो जो हमारी लाइटर बॉडी है, जो हमारी लाइटर बॉडी होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइटर बॉडी का जो केस लेंगे, क्योंकि हमारी लाइटर बॉडी में काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, mv², और यू कैन से pv। मोमेंटम सेम है तो वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, और जो हमारी वेलोसिटी है लाइटर बॉडी की जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी जो लाइटर बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी
मोर। देखो ये इससे आ रहा है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, एंड यू नो दैट पी जो है हमारा, आर पी इज वॉट, m into v, so this will comes out to be pv by 2, okay, this will comes out to be pv by 2। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली, मोमेंटम तो सेम है, किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और वेलोसिटी क्या है, जो लाइटर बॉडी होगी उसका मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देन ओनली आर मोमेंटम विल बी इक्वल, ठीक है। क्योंकि देखो मोमेंटम P1, मान लो एक बॉडी है P1, उसका मोमेंटम आपने बोला दूसरी बॉडी के इक्वल है, पर मास एक अनइक्वल है दोनों बॉडीज का, एक लाइट है एक हैवी है, मास अनइक्वल है तो दूसरा क्या बच गया, वेलोसिटी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो जो टोटल है काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ओनली, ठीक है। तो वो सिर्फ वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगी, तो जिसकी वेलोसिटी क्या ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी विल कम्स आउट टू बी मोर। तो जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल, ये मैं कर चुकी हूँ रोहित, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन। कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज जीरो, वो मैं बता चुकी हूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेज ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो मोमेंटम है वो जीरो है, इट मीन्स बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता, इट मीन्स उसका वेलोसिटी ही क्या होगा, जीरो होगा। और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर विल कम्स आउट टू बी जीरो, तो योर मैकेनिकल एनर्जी विल बी द potential energy of that body, potential energy possessed by that body. So this was all about the session, and I hope your doubts are clear now. Very thank you to all of you.